పొరలోకి నా తండ్రి నాకే సోనియా మమ్మీకి అందరికీ మంచి మా ఫ్యామిలీకి అందరికీ మంచి అది కరోనా వైరస్ నా మాటను అది కరోనా వైరస్కి అది ఏమంటారు నరకంలో అది నాకు ఇట్లా అవసరం మమ్మీ డాడీ చచ్చి వెళ్తే అవసరం అందరికీ మా తాతకి కాపాడు అందరికీ కాపాడు అందరికీ పాస్టర్లకి కాపాడు అది ఒక పాస్టర్కి జ్వరం వచ్చింది తక్కువ అది గుబ్బికి ఆ గుబ్బి అది నా మాట మంచి అది గుబ్బికి మంచి నా మాట దిగోద్వారు నా మాట నేను అందరికీ మంచి సండే స్కూల్ పిల్లలకి మంచి అది వాళ్ళకి ఇట్లా గుడ్డి వాళ్ళకి మంచి కళ్ళు కాలి చెయ్యి అందరికీ మంచి ఇట్లా వాళ్ళకి లేపు అందరికీ మంచి యేసుక్రీస్తు పెట్టడానికి వచ్చున్నామా తండ్రి ఆమేన్. When you get scared, let me hear you say, hey, do 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 not give up. God sent his prophets to warn the nation to obey God, repent for their sins, and straighten their lives. But the people of Judah ignored God and the prophets and the messages that were sent to them. They continued to do what they wanted to do, more than often disobeying God. They should have known that God would not put up with this disrespect and disobedience for long. So it was time for Judah to come crashing down. One prophet of God was Isaiah. One day he had a vision, which was a message from God. Isaiah saw God sitting on a throne, wearing a long robe which covered the entire temple. There were 6 winged seraphims flying around the throne, covering their feet with 2 wings, covering their eyes with 2, and flying around with the other 2. They all sang praises of the Lord in loud voices, which shook the building to its very foundation. The entire room was filled with smoke. Isaiah thought he was done for and would be destroyed soon. He thought to himself, I know I'm a sinful man, and so is the entire human race. However, I have seen the Lord himself with my own eyes. Isaiah saw one of the seraphims fly to the altar and pick up a burning coal with a pair of tongs. The seraphim touched Isaiah's lips with the burning coal and said, See, this coal has touched your lips. Now your sin is forgiven. Isaiah heard the Lord asking a question. Who should I send to bring a message to see my people? Isaiah said, I will go. Send me. God said, Go and tell my people that they may hear my words, but they will not understand my message. See my work, but won't understand it. I will harden their hearts and close their eyes and ears. And you must do this until all the cities and the whole country is destroyed, until their houses are empty and no one is left in them. Israel will become like a tree which is cut down. However, it will again grow from a holy seed. So, did you enjoy the story?
Oh, yes, I did. I forgot all about eating. That's quite something, Gumbo. All right, then. Let's start with the story. I'm sure you're going to love it. The king of Persia threw a big party, which lasted for 6 months. He invited all the important people of his kingdom. When his party ended, he held another special banquet for the officials and the servants of the palace, which too lasted for 7 days. The banquet was held in the courtyard, which was beautifully decorated with white and blue banners with purple ribbons. There were gold and silver couches on the marble floor, and drinks were served in gold cups. The servants and the officials could have them as much as they wanted. At the same time as the king's banquet, the Queen of Persia threw a banquet for the women of the palace. On the 7th day of the king's banquet, the king commanded that Queen Vashti be brought to his banquet. He wanted her to wear her royal crown and let the men see her great beauty. But Queen Vashti refused to come. This angered the king. His advisors advised him that if the queen was led away for her refusal, then all the other women in the kingdom would think they could disobey their husbands too. They suggested that Queen Vashti be forever banished from the king's presence. The king liked the idea, so he banished Vashti and let the whole kingdom know about it. Soon after this, the king realized what he had done and that he needed a new queen. So he sent his men to find the most beautiful girl in their region and bring them to the palace so that he could choose his new queen. In the city lived a Jewish man called Mordecai. His young cousin Esther lived with him too. When her parents died, he adopted her and raised her as his own daughter. Esther was extremely beautiful, and so the king's men chose her as one of the girls to be the queen. The man in charge of all the women was very impressed with Esther, and so she was brought to the palace and given special treatment. She was also given servants for herself. However, Esther told no one in the palace that she was a Jew, as Mordecai advised her not to. After a year, when she was brought before the king, he was left amazed by her beauty. He immediately put the crown on her head and declared her queen, and Mordecai became an official in the king's court. I want to be as pretty as the new queen someday. You are very pretty, Freckles. To watch more videos, please subscribe. Today's story is called The Special Request. Everything was going well in the kingdom of Persia, and the people loved the new Queen Esther, until the second most powerful person after the king called Haman and started creating problems. He enjoyed power and demanded respect from everyone. So, he passed an order that all the officials in the kingdom should bow to him whenever he passed by. Everyone followed except Mordecai, the queen's cousin. He refused to bow to Haman even when the other officials challenged him. The officials went to Haman asking him about what should be done to Mordecai. Haman knew that Mordecai was Jew, and the only way to get back at him was to kill all the Jews in the entire land. He convinced the king against the Jews. The king allowed Haman to kill all the Jews, but he was unaware of the fact that the queen herself was a Jew, and that Mordecai and she were related. When Mordecai came to know about Haman's plan, he went to Queen Esther to see. Esther came up with a plan and invited King Xerxes and Haman for a dinner.
Haman was extremely pleased to be invited for the queen's dinner and felt very important, especially when he was invited second time over. But when he was leaving from the dinner, he came across Mordecai, who still refused to bow to him. He was extremely angry. His wife and his friends suggested him to build a gallows and hang Mordecai before his second dinner invitation. Haman liked this idea and ordered the gallows to be built. That night, the king couldn't sleep, so he requested the book of history of his kingdom to be read to him. In the book, he read about Mordecai and how he saved the king from a conspiracy against him. Right at that moment, Haman came to seek permission to hang Mordecai on the gallows. But before he could ask his question, the king asked Haman, What honor should be given to a man who truly pleases me? Haman thought the king was talking about him when he was actually talking about Mordecai. Haman suggested that the honored man should wear the king's robe and ride the king's horse through the town. The king liked the idea and said, I will do that for Mordecai. Haman, make sure that happens for me. Haman did everything as per the king's orders, but was not happy about it. The next night, at the dinner, the king asked, My queen, what can I do for you? I will do anything. Queen Esther answered, If you really want to please me, save my life and the lives of my people from the order that has come from your palace to have us all killed. Who would dare pass such an order? The king asked. The queen pointed at Haman. The king was so angry that he decided to have Haman killed in the same gallows which he had built to kill Mordecai. This is how the queen saved Mordecai and all the Jewish people in the kingdom. That was so evil of Haman. Good that his plan backfired. I am happy. Let's not waste any more time. All right. Just as the angel had said, Zechariah could not speak for the whole 9 months his wife Elizabeth had the baby in her. When it was time for their baby to be born, all their relatives, their neighbors, and their close ones came to celebrate. Elizabeth and Zechariah had a baby boy who was born healthy and strong. When the baby was 8 days old, a special name day ceremony was held for him, where he was to be given a name. Their neighbors and relatives suggested that the baby should be named Zechariah in honor of his father, but Elizabeth said no. She said, "He is to be named John." The people were surprised. They asked, Why would you want to name him John? There are no men named John in your family. They turned to Zechariah and sought his opinion on this matter. They were certain that Zechariah would not name his child John. Since Zechariah couldn't speak, he asked for a tablet to write on, and to the people's amazement, he wrote, "His name is John." The moment he wrote this down, Zechariah began to speak again, and he began praising God. Whoever heard about this were amazed. They wondered what this little boy would grow up to be. Wow! That was a wonderful story. How magically Zechariah got back his voice, just like God had promised. Yes. To watch more videos, please subscribe. Plants and trees. On the 4th day, God created the sun to shine in the day, the moon and stars to come out at night. One day, Moses went to Mount Horeb with his sheep.
There, God appeared to him as a flame of fire in a bush. Since there was no room anywhere else, they decided to spend the night in a stable. Here, Mary had her baby, Jesus. She wrapped him in a blanket and put him to sleep. He's got the whole world in his hands. 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 Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are fine in home. And now close your eyes. हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे महान पिता परमेश्वर, आपने हम सबको संभाला, सुरक्षित रखा, इसके लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। हे परमेश्वर, सभी बच्चों को अच्छी बुद्धि और ज्ञान दीजिए और जो भी वह पढ़ रहे उन्हें समझे और उसी मार्ग के अनुसार चले। मुझे भी अच्छी बुद्धि और ज्ञान दीजिए कि मैं उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। सुन ले पिता, आमीन। So बच्चों, today we learn about the topic is you are chosen, means हम चुने गए हैं। हम सभी परमेश्वर में चुने गए हैं। परमेश्वर ने पृथ्वी पर रहने वाले हर मनुष्य को अपनी महिमा के लिए चुना है, हम उनका काम कर सके, उनकी महिमा कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्रिकेट टीम में अगर एक क्रिकेटर को सिलेक्ट करना होता है तो उसके पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज एंड देन वो बैटिंग अच्छा कर रहा है या नहीं, बॉलिंग अच्छा कर रहा है, ये सब नोटिस किया जाता है। इतना नोटिस करने के बाद उन्हें सिलेक्ट करते हैं। वैसे ही अगर हम परमेश्वर में हमें सिलेक्ट होना है तो परमेश्वर भी हमारे अंदर हमारे गुण, हमारा मन अच्छा है यानी ये सब नोटिस करते हैं। बच्चों, आप स्कूल में जब जाते हो तो स्टार्टिंग में आपका एडमिशन के टाइम पे आपको इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू के टाइम पे आपको पूछा जाता है ABCD, माई सेल्फ, पोएम आता है या नहीं, ये सब पूछने के बाद आपको सिलेक्ट करते हैं एंड देन आप स्कूल में जाते हो। वैसे ही परमेश्वर भी हमारे अंदर हमारा एग्ज़ाम होता है, हमारा गुण देखते हैं कि हमारे अंदर क्या है, उसके बाद ही परमेश्वर हमें सिलेक्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे दाऊद राजा के बारे में। परमेश्वर ने दाऊद राजा को एक राजा के रूप में चुना। परमेश्वर ने देखा कि दाऊद भेड़ बकरियों को चराता था। एक दिन दाऊद भेड़ बकरियों को चरा रहा था बच्चों। तो दाऊद ने देखा कि उसमें से एक भेड़ खो गया। तो बच्चों वो ढूंढने लगा कि वह भेड़ कहाँ है एंड देन उसने देखा कि उसे शेर उठाकर ले गया। तो उसने सभी भेड़ों को वही छोड़ दिया और उस एक भेड़ के पीछे भागा और उसे शेर के मुंह से छुड़ाकर ले आया। परमेश्वर ने दाऊद राजा के अंदर इतना अच्छा गुण देखा कि वह एक भेड़ के लिए अपने सभी भेड़ों को छोड़ दिया और उसे शेर के मुंह से छुड़ाकर ले आया। परमेश्वर ने दाऊद के अंदर इतना अच्छा मन, इतना अच्छा गुण देखा तो परमेश्वर ने सोचा कि अगर ये एक भेड़ के लिए अपनी जान दे सकता है तो मैंने अगर इसे राजा बनाया तो मेरी प्रजा को कितने अच्छी तरीके से देखेगा। इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद राजा को यरूशलेम का राजा बनाया, उन्हें अपने काम के लिए चुना। दाऊद के अंदर परमेश्वर ने उनका अच्छा मन, उनका अच्छा हृदय देखा कि वह एक भेड़ के लिए अपनी जान दे सकता है। इतना अच्छा मन देखा तो परमेश्वर ने दाऊद को एक राजा के लिए चुना। दूसरा हम देखेंगे अब्राहम। अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करता था। परमेश्वर ने अब्राहम को मित्र कहा था। अब्राहम एक ऐसा मनुष्य था, परमेश्वर ने उसे मित्र कहा। अब्राहम परमेश्वर का हर एक आज्ञा को मानता था, परमेश्वर पर विश्वास करता था। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, आसमान में जितने तारे हैं उतना मैं तुझे वंश दूंगा। तो अब्राहम ने विश्वास किया। अब्राहम ने परमेश्वर पर डाउट नहीं किया कि वो देंगे या नहीं, पर अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। वह परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मानता था। परमेश्वर ने अब्राहम के अंदर ये गुण देखा
परमेश्वर ने दाऊद के अंदर भी गुण देखा, उसे राजा बना, और अब्राहम के अंदर भी अब्राहम आज्ञा का पालन करता था और परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करता था। अगर हम देखेंगे दुनिया में अगर किसी को चॉइस करना होता है, चूज़ करना होता है, तो हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशन है या नहीं, डिग्री है या नहीं, एंड देन उसका लुक देखते हैं कि वह अच्छा है या नहीं। ये सब देखने के बाद हम सिलेक्ट करते हैं। बट परमेश्वर ये सब नहीं देखता है, उसका लुक अच्छा है या नहीं, उसका क्वालिफिकेशन है या नहीं, डिग्री। परमेश्वर को ये सब नहीं चाहिए। परमेश्वर को चाहिए कि हमारे अंदर अच्छा क्वालिटी है या नहीं, हमारे अंदर अच्छा मन है या नहीं, हमारे अंदर अच्छा गुण है या नहीं। ये सब परमेश्वर देखते हैं। बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ लॉर्ड हैज़ चूजन एवरीवन इन जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर ने हम सभी को पहले से चुना है। बच्चों, परमेश्वर ने हम सबको चुना है, तो हमें कैसे रहना चाहिए, हमारे अंदर क्या गुण होना चाहिए, वह हम देखेंगे। फर्स्ट, अच्छा रहना। हमें हमेशा अपने मन को अच्छा रखना चाहिए। कभी बुरी बातें नहीं बोलनी चाहिए, ना ही कोई बुरा काम करना चाहिए। सेकेंड, निर्दोष रहना। हमें हमेशा निर्दोष रहना चाहिए। हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, कोई पाप नहीं करना चाहिए। हम बाहर जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, तो हम फ्रेंड्स बोलते चल ना ये करते वो करते, हमें वो सब नहीं करना है। हमें पता है हमें निर्दोष रहना है, हमें कोई गलत काम बिल्कुल भी नहीं करना है। थर्ड पॉइंट, निष्कलंक रहना। हमें हमेशा हमारे अंदर अच्छी हैबिट, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। हमें कोई बुरी हैबिट जैसे कि झूठ बोलना, किसी के बारे में बुरी बातें करना, ये सब कोई हैबिट नहीं रखनी चाहिए। हमें हमेशा अच्छी हैबिट रखनी चाहिए। फोर्थ, पवित्र रहना। हमें हमेशा पवित्र रहना चाहिए और हमारे परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। तो बच्चों, हमने कौन से 4 पॉइंट्स देखे? फर्स्ट, अच्छा रहना। हमें हमेशा अच्छा रहना चाहिए, हमारे मन को अच्छा रखना चाहिए। सेकेंड, निर्दोष रहना। हमें कोई पाप नहीं करना है, कोई बुरी बातें नहीं बोलनी है। थर्ड, निष्कलंक रहना। हमें हमेशा हमारे अंदर अच्छी हैबिटें रखनी चाहिए, अच्छी हैबिट होनी चाहिए हमारे अंदर। फोर्थ, पवित्र रहना। हमें हमेशा पवित्र रहना चाहिए। हमारे परमेश्वर का हमें काम करना, हमें हमेशा पवित्र रहना चाहिए। हमारे मन को भी पवित्र रखना चाहिए। तो बच्चों, हम ये टॉपिक से सीखते हैं कि परमेश्वर हम सबको स्वर्ग राज्य के लिए चुना है। तो हमें स्वर्ग राज्य के लिए चुना है, तो हमें उनके काम को करना चाहिए, उनकी महिमा करना चाहिए। हमारे अंदर ये सारे गुण होने चाहिए जो परमेश्वर ने हमसे कहा है। तो मैं टॉपिक को इधर ही समाप्त करती हूँ। हम प्रार्थना करते हैं। कि मेरे महान पिता परमेश्वर, जो भी आज हमने सीखा वह सब बच्चे को अच्छे से याद रहने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। हे परमेश्वर, आपने हमें चुना, हमारे अंदर जो गुण होने चाहिए, जो भी गुण हो, जो आपने बोला है कि जो क्वालिटी होना चाहिए, गुण होना चाहिए, वह सब अच्छे से हमारे अंदर रहे और हम आपकी महिमा कर सके, आपका काम कर सके। हम सभी को अच्छी बुद्धि और ज्ञान दीजिए। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ले पिता, आमीन। सो बच्चों, आज हम 2 मेमोरी वर्ड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट मेमोरी वर्ड्स, 1 सैमुएल, पहला सैमुएल 16वां अध्याय उसका 7वां वचन। परंतु यहोवा ने सैमुएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके ढील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, तो मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा का दृष्टि मन पर रहती है। 1 Samuel 6 chapter 7 verse. But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord see not as the man see. For the man look on the outer appearance, but the Lord look on the heart. And then second memory words, इफिसियों उसका पहला अध्याय 4वां वचन। जैसे
जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। Ephesians 1st chapter 4th verse. According as he had chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. हाय बच्चों, सबको जय मसीह की। आज हमारा लेसन का नाम क्या है? यू आर चूजन। इस लेसन में हमने बहुत अच्छा वीडियो देखा है और अच्छा सा लेसन भी सुना है ना। आज पूरे हमको परमेश्वर ने कितने लोगों के बारे में बताया है? पूरे 6 लोगों के बारे में बताया। आपने ऑब्जर्व किया है क्या? वो वीडियो में 4 लोगों के बारे में दिया है और लेसन में 2 लोगों के बारे में दिया था, हु आर चूजन। ओके, तो हम इन सब सिचुएशंस में देखेंगे तो पहले यहूदा के लोग ने जब पाप किया है और दुष्टता से जब वो चल रहे थे, तब परमेश्वर ने किसको चूज़ किया है, किसको चुना है? यशायाह को चुनकर उन सबको उनके बात बताने के लिए उन्होंने निर्णय किया है। उसके बाद हम देखेंगे तो एस्तर को भी यहूदा के लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने एस्तर को भी चुना है ना बच्चों। उसके बाद जॉन द बैप्टिस्ट को भी यीशु मसीह के मार्ग को सराल करने के लिए, मतलब यीशु मसीह आ रहे हैं तो उनका मार्ग सराल करने के लिए पहले उन सबको उनके बारे में बताने के लिए किसको चुना है परमेश्वर ने? जॉन द बैप्टिस्ट। उसके बाद हम अगर देखेंगे तो यीशु मसीह इस जगत में आए, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बारे में हमने देखा है ना वो वीडियो में। मतलब पूरे लोगों को उनके पापों से बचाने के लिए, हम सबको हमारे पापों से बचाने के लिए परमेश्वर ने किसको चुना है? यीशु मसीह को चुना है। यीशु मसीह को इस जगत में भेजने के लिए परमेश्वर ने किसको चुना है? मेरी को चुना था। ठीक है, तो इस जगत में आए क्यों? हम सबको पापों से बचाने के लिए वो बलिदान होने के लिए आए। मतलब एक काम के लिए उन्होंने प्रत्येक किया है ना, चूज़ किया है। हमने लेसन में किसके बारे में देखा है? दाऊद के बारे में देखा है। परमेश्वर ने दाऊद को किस लिए चुना है? अपने लोगों को, मतलब परमेश्वर के चूजन जनरेशन को, मतलब इज़राइल प्रजा को रूल करने के लिए परमेश्वर ने किसको चुना है? पहले शाऊल राजा को चुना था, मगर वो परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन किया था। इसलिए परमेश्वर ने परमेश्वर के मन के अनुसार जो चलता है वह दाऊद को चुना है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो और किसके बारे में बोला है? अब्राहम के बारे में। अब्राहम भी परमेश्वर जो बोला है उसके अनुसार चला था, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को भी चुना है। और उनको क्या बोला बच्चों? उनको एक टाइटल दिया है परमेश्वर ने, क्या है वो? ये मेरा फ्रेंड है करके, है ना, बेस्ट फ्रेंड है। इसको बताने के बदले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इतना अच्छा टाइटल अब्राहम ने पाया है। मतलब ये 6 लोगों को परमेश्वर ने क्यों चुना है? उनको कुछ काम है ना, काम, उनका काम निभाने के लिए इन लोगों को, बहुत सारे जन थे उस टाइम पर भी, मगर उन सब में परमेश्वर को कौन अच्छे लगे? ये 6 लोग बहुत अच्छे लगे थे। मतलब उनके टाइम में, अभी यीशु मसीह पैदा होने के टाइम में परमेश्वर ने किसको चूज़ किया है? मेरी को चूज़ किया है। क्यों? बहुत सारे लोग थे ना, मगर फिर भी मेरी उनको अच्छी लगी, मतलब उनका मन अच्छा था, इसलिए परमेश्वर ने मेरी को चुना है। उसके बाद डेविड के टाइम पर डेविड अच्छा लगा। बहुत सारे लोग थे, मगर राजा बनने के लिए परमेश्वर ने किसको चुना है? डेविड को ही चुना है, क्योंकि उनका मन अच्छा है, वो बहुत निस्वार्थ है करके। ऐसे ये 6 लोगों के बारे में हमने देखा है। उन सब में वही परमेश्वर को उनका मन अच्छा लगा, इसलिए उनको चूज़ किया था, चुना था। तो अभी बच्चों हमको भी परमेश्वर ने, हम अगर एफेसियंस 2:10 में देखेंगे तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? हम सबको भी परमेश्वर ने चुना है। वी आर आल्सो चूजन बाय गॉड। क्यों? किसके लिए हम चूज़ किए गए हैं? परमेश्वर ने जो अच्छे काम हमारे लिए लिखा है उन सब को निभाने के लिए हम
परमेश्वर से चुने गए हैं। कब चुने गए अगर देखने से वहाँ क्या लिखा रहता है पता है आपको? एफेसियंस 2:10 में बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ अर्थ करके लिखा गया है। तो बच्चों देखो, बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ अर्थ ओनली वी वर चूजन। अभी तो फिर हमको वो जो काम परमेश्वर ने दिया है, हमको चूज़ करके परमेश्वर ने हमको चुन के परमेश्वर ने जो काम दिया है उसको निभाना है ना। हमको बहुत ही फेथफुल रहना है परमेश्वर के कामों में, क्योंकि ये 6 लोगों को परमेश्वर ने काम दिया है उन सबको चुनकर, तो उन्होंने ना बहुत अच्छे से जो काम उनको दिया गया है वो निभाया है। तो हमको भी ऐसे ही निभाना है, तब परमेश्वर हमको भी देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। और अभी देखो, अब परमेश्वर की दृष्टि में अगर हम भी अच्छे बन गए तो हमको भी परमेश्वर एक टाइटल देंगे। कैसे? यू आर माई फ्रेंड। वैसे जैसे उनको दिया था वैसे परमेश्वर हमसे भी खुश होकर हमको भी हमसे भी परमेश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है? ठीक है बच्चों, आज हम छोटी सी प्रार्थना करके ये सेशन को क्लोज कर देंगे। प्रिय परमेश्वर, हम आपके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज का दिन जो आपने दिया है उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। और हम सबको आपने चुना है, इसलिए हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु जी। आपने हमको क्यों चुना है वो काम निभाने के लिए आप हमारी मदद करो प्रभु जी। सब बच्चों को आपके हाथ में दे रहे हो प्रभु जी, उनका आशीष करो। जो कोई ये ऑनलाइन लेसन सुन रहे हैं उन सबका आशीष करो प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से ये छोटी सी प्रार्थना दे रही हूँ, सुन और ग्रहण करो पिताजी, आमीन। सबको जय मसीह की। फिर कल हम दूसरे लेसन से फिर से मिलेंगे बच्चों, बाय।